Hello everyone, I am Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. So in this channel you can find videos of CBSE grade to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. Right? So बच्चों आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स और ये पार्ट 2 वीडियो है. पहले पार्ट के वीडियो में मैंने आपको आधा चैप्टर समझा दिया है और अब हम पेज नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे जहां से मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना शुरू करूंगी. राइट? सो हम लोग पेज नंबर 61 पर डायरेक्टली आते हैं. एक बार मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करूंगी हर पैराग्राफ का और एक बार मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. राइट? सो हम लोग स्टार्ट करेंगे यू सॉ सुबु से एंड ये खत्म होगा आस्क्ड टू गो होम पे. राइट? और आस्क्ड टू गो होम नेक्स्ट पेज पे होगा. तो इस बीच हम पेज भी चेंज करेंगे, हम पेज नंबर 62 पे जाएंगे. So in this paragraph, the author tells that Subbu was every time found with the boss only, that means SS Vasan. But the only place where they could not be found together was the attendance register. Subbu was given a group of story department in which a lawyer, writers and poets worked together. The lawyer who worked in the story department was a legal advisor of the department, and people used to call him the opposite. There is a story behind this name given to the lawyer. Now, let's read the story. ठीक है? One day what happened, one very talented actress came to the studio and that actress was very moody. That actress started shouting in the studio and everybody was shocked to see the incident. Suddenly, the lawyer switched on the recording equipment and played back the recording in the entire studio of the actress. When the actress paused for breath, the actress' anger was not something to make anyone guilty or feel bad or anything against producer. But when she heard her own voice through that recording, she became extremely shocked. Actually, there was less mistake of actress also because she belonged from a small town and very quickly she got fame and name in the film industry and she had not experienced the basic day-to-day struggle to achieve success and that's why she was unaware to behave properly in front of anyone. So the actress became so shocked after hearing her recording that she left her career in the middle and couldn't recover herself from the recording incident. So that lawyer had ruined actress' career unwillingly. Right? And that's why the lawyer was named as the opposite among his colleagues. The Gemini Studios members wore an oversized khadi shirt with khadi dhoti, but the lawyer wore pants and a tie and sometimes an oversized coat which seemed to look like a warrior coat. The lawyer was the only logical person in the studio while the others were dreamers as the way the writers and actors naturally are. Like so many other members, the lawyer was close to his boss SS Vasan and he was allowed to produce a film in which a lot of pancakes means makeup material were used but the film was flop and the boss means SS Vasan closed the story department and all the poets and writers lost their jobs with them and with them the lawyer also lost his job. Right? So बच्चों इस पैराग्राफ में ऑथर बताता है कि सुबु हर समय अपने बॉस के आसपास ही पाया जाता था. ठीक है? और बस अटेंडेंस रजिस्टर में दोनों के नाम एक दूसरे से दूर पाए जाते थे. सुबु को एक स्टोरी डिपार्टमेंट में इंक्लूड किया गया था जिसमें कुछ पोएट्स राइटर्स थे और एक लॉयर भी था. जो लॉयर था वह स्टोरी डिपार्टमेंट का लीगल एडवाइजर भी था और डिपार्टमेंट के लोग उसको अपोजिट बोलते थे. इस नाम के पीछे भी एक स्टोरी है कि लॉयर को क्यों अपोजिट बोला जाता था. अब मैं आप सभी को ये स्टोरी सुनाना चाहूँगी. एक बार एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, स्टूडियो में आई थी और वे काफ़ी गुस्से में रहा करती थी. वह एक्ट्रेस अचानक स्टूडियो के लोगों पर गुस्सा करने लगी और सभी लोग उसको देखकर शॉक्ड हो गए. तभी लॉयर ने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दिया और जब एक्ट्रेस ने सांस लेने के लिए रुकी तो उसकी रिकॉर्डिंग पूरे स्टूडियो के सामने ऑन कर दी लॉयर ने. एक्ट्रेस का गुस्सा किसी भी हद तक किसी के अगेंस्ट नहीं था पर वह एक्ट्रेस अपनी रिकॉर्डिंग सुनकर बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई थी. देखा जाए तो उस एक्ट्रेस की ज़्यादा भी बड़ी गलती नहीं थी. वह एक छोटे से शहर से थी और उसको बिना कोई ज़्यादा स्ट्रगल किए बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई थी और इस वजह से वह पब्लिक में कैसे बिहेव करते हैं वह सीख नहीं पाई थी.
वह एक्ट्रेस अपनी रिकॉर्डिंग सुनकर इतना सदमे में आ गई थी कि उसने अपना करियर बीच में ही छोड़ दिया था। लॉयर ने मजाक मजाक में उस एक्ट्रेस का करियर खत्म कर दिया था, लेकिन वह ऐसा इंटेंशनली नहीं चाहता था। इसी वजह से लॉयर को अपोजिट बोला गया था। सारे मेंबर्स जो जेमिनी स्टूडियोज के थे लॉयर को अपोजिट बोलते थे। जेमिनी स्टूडियोज के मेंबर्स बड़ी सी खादी की शर्ट और खादी धोती पहनते थे, पर लॉयर पैंट और टाई या फिर बड़ा सा कोट पहनता था। वह अकेला ही लॉजिकल आदमी लगता था सपनों की दुनिया में रहने वालों के बीच में, क्योंकि आमतौर पर एक्टर्स और राइटर्स रियल दुनिया से दूर ही अपनी दुनिया में रहते हैं। औरों की तरह लॉयर्स भी बॉस के काफ़ी क्लोज था। बॉस मीन्स एस वसन। और प्रोड्यूसर ने उसको परमिशन भी दे दी थी कि वह एक फिल्म बना सके, और फिल्म में बहुत सारा पैनकेक भी लगा था, मीन्स मेकअप मटेरियल। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसी वजह से बॉस यानी एस वसन ने स्टोरी डिपार्टमेंट के जितने भी राइटर्स और पोएट्स थे उन सबको नौकरी से निकाल दिया था, और इसी वजह से लॉयर की भी जॉब चली गई थी। ओके, अब हम पेज नंबर 62 पे आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। जेमिनी स्टूडियो से जो स्टार्ट होता है एंड वॉज सून फोर्थ कमिंग पे खत्म होता है, राइट? सो Gemini Studios was the favorite place to have good time together for the poets like S.D. Yojkar, Sangu Subramaniam, Krishna Sastry, and Harindranath Chattopadhyay. Studio had excellent mess which offered tasty coffee all day and night. During those days, means it was the time of 1947, means after independence, Congress was the ruling nation. Congress was ruling the nation, means our country, and Congress had made some rules in which too much of togetherness or hanging out was prohibited. So, meeting for a cup of coffee was very satisfying for social people. Except office boys and clerks, everybody at the Gemini studio stayed very relaxed, because it is important also for the poets or writers to be in a good state of mind. Otherwise, they cannot write anything interesting. But condition of office boys and clerks were very pathetic, and they always had too much of work to do in the studios. And they used to get least importance also for their efforts. Most of the people in the studio wore khadi, and they all were Gandhiji's fans. But beyond that, students, they had no interest in any kind of political conversations or political happenings in the country. But the members of studios were against communism. Students, I would like to tell you a bit knowledge about communism. Communism is the rule of government or any social organization in which government removes social organization remove the unfair gaps in incomes of the countrymen. The government provide the necessities of life to people, but negatives of communism is it stops the ideas to become rich of common people, as the government takes away all the extra income from the person and distributes the money among the needy ones, or keep the money as a security for their own government. This is the bad side of communism. People of South India had other level of opinions about communism. They thought that communist is a godless man who can kill his parents, children, friends or relatives, okay, for his own good. And a communist spread violence and threat among innocent and ignorant people. This news was running in South India about communism, and it came to the ears of Gemini Studios poets also. Okay, but the proof about communism and its functioning was soon to come in front of everyone. So बच्चों, जेमिनी स्टूडियोज पोइट्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग जगह होती थी समय बिताने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत टेस्टी कॉफ़ी मेस में मिला करती थी, जिसको एस योजियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जैसे पोएट्स भरपूर आनंद उठाते थे। ये 1947 यानी आज़ादी के बाद की बात है, जब कांग्रेस पार्टी हमारी कंट्री को रूल करती थी। तब कांग्रेस ने कुछ रूल्स बनाए हुए थे जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा मिलना जुलना या घूमना फिरना मना था। उस टाइम अगर कोई एक कप कॉफ़ी के लिए भी मिल जाता था तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ऑफिस बॉय और क्लर्क्स जो होते थे वो जेमिनी स्टूडियोज़ के वो काम करते थे, और जेमिनी स्टूडियोज़ के सभी लोग बहुत मस्ती में रहते थे, क्योंकि पोइट्स और राइटर्स के लिए खुश रहना ज़रूरी भी माना जाता था, क्योंकि तभी वे कुछ अलग और इंटरेस्टिंग कर पाते हैं। पर ऑफिस बॉयज़ और क्लर्क्स की हालत बहुत ख़राब थी, और उनके काम की कोई इज्जत नहीं करता था, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं थी। स्टूडियो के अधिकतर मेंबर्स खादी के कपड़े पहनते थे क्योंकि वे गांधी जी के फ़ैन थे।
और इसके अलावा उन सभी लोगों को राजनीति में और राजनीतिक बातों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जेमिनी स्टूडियोज के मेंबर्स कम्युनिज्म के काफ़ी अगेंस्ट थे। बच्चों, अब मैं आपको कम्युनिज्म के बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझाना चाहूँगी और आपको ध्यान से सुनना है। कम्युनिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट रूल करती है जो अपने देश के लोगों के बीच के इनकम यानी सैलरी के जो गैप्स होते हैं उसको रिमूव करती है। यानी उस कंट्री का हर इंसान की सेम सैलरी होती है और जो भी इंसान ज़्यादा पैसे कमाता है मींस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के रूल्स को ओवरकम करता है, उसको उसका एक्स्ट्रा मनी गवर्नमेंट ज़रूरतमंद लोगों को दे देती है या फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए रख लेती है। कम्युनिज्म में गवर्नमेंट लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा करती है, पर इस गवर्नमेंट की बैड साइड यह है कि जो आम जनता होती है वह अपने रिच बनने के आइडियाज़ पर एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा इनकम जो भी होगी वो तो गवर्नमेंट के पास ही चली जाएगी। यह इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बैड साइड है। पर साउथ इंडिया के लोग कुछ ज़्यादा ही कम्युनिज्म के बारे में गलत सोचा करते थे। उनको लगता था कम्युनिस्ट वह क्रूर इंसान होता है जो अपने फ़ायदे के लिए अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, चिल्ड्रन सबको मार देता है और कम्युनिस्ट समाज में वायलेंस और थ्रेट इनोसेंट और इग्नोरेंट लोगों के बीच फैलाता है। यह न्यूज़ पूरे साउथ इंडिया में फैल गई थी और जेमिनी स्टूडियोज तक भी ये बातें कम्युनिज्म के बारे में होने लगी थी। पर किसी के पास प्रूफ नहीं था कि कम्युनिज्म किस प्रकार की गवर्नमेंट होती है, पर जल्द ही सबको पता चलने लगा था। ठीक है, अब हम पेज 63 पर आएंगे, जो कि अभी तो 62 पे ही है। वेन फ्रैंक से जो स्टार्ट होता है पैराग्राफ, पैरा 7 और इन द मेकअप डिपार्टमेंट पे खत्म होता है। इस बीच हम पेज भी चेंज करेंगे, हम पेज नंबर 63 पर आएंगे। So when Frank Buchman, who was the founder of Moral Rearmament Army, came with some 200 people to Madras in 1952, they found Gemini Studios as the best place to stay as they were treated with warmth. Nobody knew anything about the Moral Rearmament Army people, and at the Gemini Studios, they all thought that those people belonged from international circus. They made some wild perceptions about Moral Rearmament Army. Those people were not good on trapeze, which is a kind of circus act, but and their friendliness with animals could be seen only at the dinner table. ठीक है, but those Moral Rearmament Army presented two plays in Madras, and they did it in a very professional manner. First was the Jotham Valley, and second the Forgotten Factor. The family of 600 people of Gemini Studios saw the play again and again because Moral Rearmament Army presented the plays in Madras city a lot of times. The message of the play was very simple and related to the moral values, but set in costumes were out of the world and very attractive. People of Madras and almost all Tamil Nadu were highly impressed from the plays. Author tells that after some years he came to know that Moral Rearmament Army was not circus or artist, but they were doing a kind of counter movement against communism and wanted to aware people to the maximum level that communism should not be promoted in any country. And big bosses like SS Vasan were fooled by Moral Rearmament Army as they thought they had come to show plays or to do circus activities, but Moral Rearmament Army motives were completely different and they came to give a message against communism. Author also says that the big bosses like SS Vasan were hardly affected by Moral Rearmament Army or no Rearmament Army, international communism or no international communism, because their companies or studios were running absolutely well and they were receiving their profits from their work. The staff of Gemini Studios had good time with Moral Rearmament Army people, and for the office boys it was a change because for them to put a thick layer of pancakes means makeup material on the faces of MRA during their plays. So बच्चों, जब फ्रैंक बुचमैन जो मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी के फाउंडर थे, जब वो मद्रास आए तो उनको जेमिनी स्टूडियोज में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टूडियो के मेंबर्स ने उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया था। ठीक है, जेमिनी स्टूडियोज का कोई भी मेंबर मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी के लोगों के बारे में नहीं जानता था और सबने सोचा कि वह इंटरनेशनल सर्कस से बिलोंग करते हैं, कोई सर्कस के लोग हैं। मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी के लोग ज़्यादा भी अच्छे कलाबाज नहीं थे और एनिमल्स के साथ वे बस डिनर टेबल पे ही मिलते थे। मीन्स एनिमल्स के साथ कोई कर्तव्य नहीं दिखाते थे, वो एनिमल्स को सिर्फ खाते ही थे।
पर एमआरए के लोगों ने मद्रास सिटी में 2 प्ले किए थे। एक था जोथम वैली और दूसरा द फॉरगॉटन फैक्टर, और ये दोनों प्लेस पूरे मद्रास सिटी में काफ़ी फेमस हो गए थे। और जेमिनी स्टूडियोज़ के लोग और पूरे तमिलनाडु के लोग ये प्ले कई बार देख चुके थे और पूरी तरह से मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी के लोगों से प्रभावित हो गए थे। यह प्लेस मॉरल वैल्यू से रिलेटेड मैसेजेस देते थे, पर जो प्ले के लोग सेट लगाते थे और कॉस्ट्यूम्स पहनते थे वे बहुत ही सुंदर हुआ करते थे। ऑथर बताता है कि कुछ सालों बाद उसे पता चला कि मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी के लोग कोई सर्कस या आर्टिस्ट नहीं थे, सर्कस वाले आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि वह कम्युनिज्म के खिलाफ लोगों तक मैसेज फैलाने आए थे। जो एसएस वसन जैसे बॉसेस थे उनको एमआरए के लोगों का मकसद पता ही नहीं चल पाया था, और अगर पता भी चल जाता तो एसएस वसन जैसे बड़े लोगों जो फाउंडर थे जेमिनी स्टूडियोज के, उनको क्या फ़र्क पड़ना था, क्योंकि मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी का होना या ना होना, इंटरनेशनल कम्युनिज्म का होना या ना होना, उनकी कंपनी और स्टूडियो के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस बात से। उनकी कंपनी से उनको पूरे प्रॉफिट मिल रहे थे। पर जेमिनी स्टूडियोज के जो ऑफिस बॉय थे उनके लिए चेंज हो गया था, क्योंकि उनको मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी के लोगों के फेस पर पैनकेक्स भर भर के लगाने का मौका मिल गया था। ओके, नाउ पैरा 9। अब हम लोग जो अ फ्यू मंथ्स लेटर से स्टार्ट है एंड इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू पे खत्म होता है। आप लोगों ने पेज भी चेंज किया होगा, ये पेज नंबर 63 है। So after few months, telephone lines of big bosses like SS Vasan buzzed as one more big visitor was about to visit Gemini Studios, and whole crowd of studio cleared the shooting stage to welcome the visitor. The staff of studio got information about the visitor that he was a poet from England. The normal people of studio only knew few poets of England like Wordsworth and Tennyson. The more literate one knew of Keats or Shelley, or only one or two staff members knew the name of Eliot. On the whole, the staff of Gemini Studios didn't know much about poets of England except the very famous ones like Wordsworth or Keats. Now, this question was running in the minds of every staff members of Gemini Studios, that who was visiting the Gemini Studios. Somebody from the staff made the guess that a poet was not coming, but instead of him, an editor was visiting their studio, because their boss was also an editor of popular Tamil weekly Ananda Viketan, and that's why their boss SS Vasan was welcoming that new visitor. So this kind of guess all the staff members were making before the visitor's arrival. But students, this is not true information about the visitor. You will come to know later on about this. Author says that the visitor was not the editor of any renowned British publication, which was well known in Madras, and members of Gemini Studios, since the top class of the Hindu newspaper were taking the initiative to welcome the visitor coming from England. So the staff members of Gemini Studios guessed that the visitor was surely an editor of a daily newspaper of British or England, but well-informed people of Gemini Studios were sure that he was not from the Manchester Guardian or London Times. So बच्चों, कुछ महीने बाद एसएस वसन जैसे बॉसेस को यह कॉल आया, एसएस वसन को कॉल आया कि एक बहुत बड़ा विजिटर जेमिनी स्टूडियो में आने वाला है और स्टूडियो के लोगों को शूटिंग का स्टेज खाली करना होगा विजिटर के वेलकम के लिए। ओके, विजिटर इंग्लैंड से आ रहा है। जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ को विजिटर की यह इंफॉर्मेशन मिली कि वह एक पोएट है और इंग्लैंड से आ रहा है। स्टूडियो के नॉर्मल लोग इंग्लैंड से के एक दो पोइट्स को ही जानते थे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ को जानते थे, टेनिसन को जानते थे, कुछ पढ़े लिखे कीट्स और शेली को जानते थे, और थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे इलियट को जानते थे। पूरी तरीके से स्टूडियो के लोग इंग्लैंड के ज़्यादा पोइट्स को नहीं जानते थे। अब जेमिनी स्टूडियो के सारे स्टाफ मेंबर्स के दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा था कि जेमिनी स्टूडियो में आखिर कौन आ रहा है। कहीं से उड़ते उड़ते खबर आई कि जो विजिटर आ रहा था वह पोएट नहीं बल्कि एक एडिटर है, और इसी वजह से उसने बॉस एसएस वसन, जो खुद भी तमिल वीकली आनंदा विकेतन के एडिटर हैं, उसकी वजह से इंग्लैंड के एडिटर के स्वागत में एक बड़ा रिसेप्शन देने वाले हैं। पर बच्चों, यह सब गेस थे जो जेमिनी स्टूडियोज के लोग आपस में मिलकर लगा रहे थे। असलियत आपको चैप्टर के एंड तक ही पता चलेगी। ऑथर बताता है जो विजिटर इंग्लैंड से आने वाला था वह किसी नामी ब्रिटिश पब्लिकेशन का एडिटर भी नहीं था,
पर द हिंदू जैसे टॉप न्यूज़पेपर के स्टाफ मेंबर्स उस विजिटर का स्वागत करने के लिए रेडी भी बैठे थे। पर जेमिनी स्टूडियोज के लोगों ने गेस किया कि ज़रूर वह विजिटर इंग्लैंड के किसी डेली न्यूज़पेपर का एडिटर है। पर स्टूडियो के कुछ वेल इन्फॉर्म्ड लोग, मीन ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, यह भी श्योर थे कि वह विजिटर द मैनचेस्टर गार्जियन या लंदन टाइम जैसे न्यूज़पेपर का एडिटर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, ये उनको ये पता था, इतने बड़े न्यूज़पेपर का, मैगजीन का एडिटर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम पैरा 10 पे आएंगे जो एट लास्ट से स्टार्ट होता है एंड एन एक्सप्लेन मिस्ट्री पे खत्म होता है। इस बीच हम पेज भी चेंज करेंगे, हम पेज नंबर 64 पे आएंगे। So at last, the poet or the editor from England visited the Gemini studio. He was a tall man with serious expressions. Then the boss S.S. Vasan gave a speech to introduce the visitor, but the boss also knew little bit about poet, which everybody came to know after hearing the boss speech. When poet or editor started speaking, none of the studio members was able to understand the accent, and then the poet left after speaking for an hour. Then all studio members were confused that what an English poet was doing in a Tamil filmmaking studio, and Tamilians were least interested to develop taste in English poetry. The poet also realized that his stories were not understood by the common people of Gemini Studios, and the entire visit of the English poet who came from England was a mystery for everyone because nobody understood his words, his accent, and his expressions when he gave his speech in front of Gemini Studio staff members. तो बच्चों, एक दिन वही पोएट जो इंग्लैंड से आना था वह जेमिनी स्टूडियो आया। वह दिखने में लंबा था और चेहरे पर काफ़ी गंभीर एक्सप्रेशंस थे। जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था एस.एस. वसन, उसने सबके सामने उस पोएट के इंट्रोडक्शन में एक स्पीच दी थी, पर एस.एस. वसन को भी पोएट के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। जब पोएट ने स्पीच देना शुरू किया तब जेमिनी स्टूडियोज़ के किसी भी स्टाफ मेंबर को पोएट की बातें समझ नहीं आईं और उसका लहजा और एक्सेंट भी समझ नहीं आया, और स्टूडियो के सभी लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्यों आया है ये पोएट, और ये तमिल मेकिंग स्टूडियो में क्यों आया है, और तमिलियंस को तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इंग्लिश पोइट्री टेस्ट को डेवलप करने के लिए। ओके, तो उनको पता भी नहीं चल पा रहा था। पोएट को भी ये लग रहा था कि उसकी स्टोरीज कोई भी समझ नहीं पा रहा है, और उस इंग्लैंड से आए हुए पोएट की विजिट एक मिस्ट्री बन के रह गई सबके बीच में। ओके, क्योंकि किसी को उसकी बातें और बोली समझ नहीं आई जो उसने जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ मेंबर्स के सामने बोली थी। ठीक है, अब मैं आपको द ग्रेट प्रोज राइटर से स्टार्ट करूंगी, पैरा 11, और दैट वाज हिज नेम पे खत्म होता है। इस बीच पेज भी चेंज होगा, हम पेज नंबर 65 पे आएंगे। So, according to the author, the renowned prose or story writers may not admit that they are not genius, but they are patient and consistent, because genius people are not patient ones. Author also tells that the story writers become so hard-hearted that rejection doesn't affect them, and if their prose piece is not accepted, then they make the fresh copy and send that to the new editor. So the author wants to convey that prose writers are not afraid of failures or rejections. Then, after some time, for story writers, the Hindu newspaper made a tiny announcement in an unimportant corner of its newspaper page that a short story contest was going to be organized by British magazine by the name The Encounter. So, in short, a magazine was organizing a short story contest for story writers. The Encounter was not a known magazine among Gemini Studios' well-read members. Author wanted to know about the magazine before sending his story to England. Okay, and he wanted to go to the British Council library. So what he did in those days, means in 1940s, there was no notice board outside the British Council library or British buildings, because Britishers wanted the Indians to feel that they had entered quietly into the restricted area. In the library, the fresh copies of the Encounter magazine was lying, and when the author read the name of the editor of the Encounter magazine, his heart was completely throbbed, because that editor was the poet who came to the Gemini Studios from England, whose speech was not understood by anyone.
And the author sent his story to the given address, and author was somewhere hopeful that the poet, whose name was Stephen Spender, would give his story a chance because he came to the Gemini Studios and had some memories attached to the studio. सो ऑथर के अकॉर्डिंग जो जाने माने स्टोरी राइटर्स हैं वो ये कभी नहीं मानेंगे कि वे जीनियस नहीं होते, पर वे बहुत पेशेंट और बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि जीनियस लोगों के अंदर पेशेंस की कमी होती है। ऑथर ये भी बताता है कि स्टोरी राइटर्स दिमाग और मन से काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उनको फेलियर्स और रिजेक्शंस का सामना बहुत बार करना पड़ता है। स्टोरी राइटर्स ज़रा सा भी रिजेक्शन से नहीं डरते, वे अपने ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं। एक बार स्टोरी राइटर्स के लिए हिंदी न्यूज़पेपर्स ने एक छोटे से कॉर्नर में एक एड निकाला था। एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट होने वाला है जो कि एक ब्रिटिश मैगजीन द एनकाउंटर ऑर्गेनाइज करने वाली थी। सो द एनकाउंटर मैगजीन को जेमिनी स्टूडियोज़ के पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। ऑथर मैगजीन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता था अपनी स्टोरी इंग्लैंड भेजने से पहले, क्योंकि स्टोरी भेजने के लिए भी बहुत पैसे लगते थे, तो इसलिए वो सब कुछ जानना चाहता था मैगजीन के बारे में। सो 1940s के टाइम में ब्रिटिश बिल्डिंग्स जो होती थी या फिर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी होती थी, उनके बाहर कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानबूझकर इंडियंस को ये महसूस कराना चाहते थे कि वे रॉन्ग एरिया में चुपचाप घुस गए हैं। जब ऑथर लाइब्रेरी में गए, वहां उन्हें द एनकाउंटर मैगजीन की फ्रेश कॉपीज मिली और मैगजीन पर लिखे एडिटर का नाम देखकर ऑथर पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वह एडिटर और कोई नहीं बल्कि वह पोएट था जो इंग्लैंड से जेमिनी स्टूडियोज आया था। ऑथर ने फटाफट अपनी स्टोरी को दिए गए एड्रेस पर डाला। ऑथर को यह होप भी थी कि वह पोएट जिसका नाम स्टीफन स्पेंडर था, वह ऑथर की स्टोरी को ज़रूर महत्व देगा, क्योंकि पोएट की कुछ तो यादें जेमिनी स्टूडियोज के साथ ज़रूर जुड़ी होंगी। ठीक है, अब हम पैरा 12 पे आएंगे, जो कि लास्ट पैरा है, जो एंड ईयर्स लेटर पे स्टार्ट होता है एंड हिज गॉड दैट फेल्ड पे ख़त्म होता है। और इस बीच हम नेक्स्ट पेज पे भी जाएंगे, पेज नंबर 66 पे। नाउ ऑथर टेल्स हिज स्टोरी दैट आफ्टर मेनी ईयर्स द ऑथर completed his day at Gemini Studios and was out of it. He had much time but not much money, and anything at discounts or low price attracted his attention. On the footpath, once in front of Madras Mount Road Post Office, once he saw a lot of new books for 50 paisa each. Those all were the copies of one book only, which had beautiful thick paper cover, and it was of American origin. On those books it was written that it was low priced edition for students only, because they were celebrating 50th anniversary of Russian Revolution. That's why it was low priced for students. The author paid 50 paisa and picked a copy of the book named The God That Failed. In this book, 6 authors described their journey by writing 6 separate essays in which they mentioned that how they followed communism and why they left communism after knowing its ill effects and how bad their experience was while following communism. The name of those authors were Andre Gide, Richard Wright, Ignacio Salon, Arthur Koestler, Louis Fisher, and Stephen Spender. When suddenly author read the name of Stephen Spender, he took the book very seriously, because Stephen Spender was the same poet from England who visited the Gemini Studios. Now suddenly author realized that why, Stephen Spender's visit, why it was not a mystery for him. अब ये mystery क्यों नहीं है उसके लिए? ऑथर का जो बॉस था, ऑथर्स बॉस मीन्स एस वसन, who welcomed Stephen Spender long time ago at Gemini Studios, was not because of his poetry, but because of this book that named The God That Failed. Students, I would like to tell you or clear the meaning of this book, The God That Failed. The God was the communism or communist for those 6 authors who wrote this book, and how they felt afterwards that communism is ill for the society, and thus their God means communism has failed. So बच्चों, अब ऑथर अपनी स्टोरी सुनाता है कि कई साल बाद जब वह काम करके जेमिनी स्टूडियो से बाहर निकलता था, तब उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं थी, पर पैसे की काफ़ी तंगी रहती थी। ओके, और वह जो भी चीज़ खरीदता था, जो भी चीज़ देखता था, वह डिस्काउंट उसको ज़्यादा अच्छे लगते थे और सस्ती चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छी लगती थी, राइट? एक बार ऑथर कहीं जा रहा था, तब उसने फुटपाथ पर लगी कुछ बुक्स देखी। वे सारी बुक्स एक ही बुक की कॉपीज थी और उन बुक का कवर काफ़ी सुंदर था। वह बुक का ओरिजिन अमेरिकन था
और उन बुक्स पर लिखा था कि वह बुक स्टूडेंट्स के लिए लो प्राइस में सेल की जाएंगी क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन की 50th एनिवर्सरी की खुशी में ऐसा किया जा रहा था। ऑथर ने 50 पैसे दिए और बुक की एक कॉपी खरीद ली जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इस बुक में 6 ऑथर्स ने अलग अलग 6 एसेज लिखे थे जिसमें उन्होंने यह बताया था कि उन्होंने कम्युनिज्म क्यों फॉलो किया और कैसे वे सभी ऑथर्स कम्युनिज्म से बाहर आए जब उन्हें पता चला था कि कम्युनिज्म का सोसाइटी पर बुरा असर पड़ रहा था। उन ऑथर्स के नेम थे एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सलोन, आर्थर क्वेस्टलर, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर। जब ऑथर ने स्टीफन स्पेंडर का नाम सुना तो वो उस बुक को बहुत सीरियसली लेने लगा क्योंकि स्टीफन स्पेंडर वही सेम पोएट था जो इंग्लैंड से जेमिनी स्टूडियोज आया था। ठीक है, और अब ऑथर के सामने यह राज भी खुल गया था कि स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियोज क्यों आया था। भाई रीजन क्या था? एक्चुअली ऑथर का जो बॉस था एस वसन, जिसने स्टीफन स्पेंडर का बहुत अच्छे से स्वागत किया था जेमिनी स्टूडियोज में, वह इस वजह से नहीं किया था कि स्टीफन एक पोएट था, बल्कि इस वजह से किया था कि स्टीफन अपनी बुक को प्रमोट करने आने वाला था जिसका नाम था, यही बुक थी वो, द गॉड दैट फेल्ड। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस बुक के नाम का मतलब समझाना चाहूंगी। द गॉड मीन्स कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट को बोला गया है, और किस तरीके से जब उस बुक के 6 ऑथर्स को पता चला कि कम्युनिज्म कितनी खराब है सोसाइटी के लिए, उस दिन उनका गॉड यानी कम्युनिज्म उनके लिए फेलियर साबित हो गया था। सो बच्चों, इस स्टोरी यानी पोएट्स एंड पैनकेक्स में कोई मॉरल मैसेज नहीं दिया गया है, पर लास्ट में आपको यही पता लगा होगा कि कैसे स्टोरी में डिफरेंट डिफरेंट लोगों या चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, डिफरेंट सेक्शंस को डिस्क्राइब किया है। जैसे जेमिनी स्टूडियोज को डिस्क्राइब किया है शुरुआत में, फिर सुब्बू का इंट्रोडक्शन दिया है, कोठामंगलम सुब्बू का, फिर लॉयर का इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे लॉयर ने एक एक्ट्रेस की लाइफ को विलिंगली खराब कर दिया था। एक्ट्रेस के बारे में बताया गया है कि वो कैसे कितनी मूडी थी। स्टीफन स्पेंडर के बारे में बताया गया है कि कैसे वो इंग्लैंड से आया था, उसका मोटिव क्या था। ओके, वो अपनी बुक को प्रमोट करने आया था, जो कि हमें लास्ट में पता चला था कि बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। और बॉस जो था एस वसन, उसके बारे में बताया गया है, जो कि जेमिनी स्टूडियोज का फाउंडर था। और लास्ट में ऑथर का नेचर भी डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे ऑथर को जो मतलब कम चीज़ों की डिस्काउंट वाली चीज़ें पसंद आया करती थी। ओके, लास्ट में उसको जब वो जेमिनी स्टूडियो से बाहर आता था तो उसको डिस्काउंट वाली चीज़ें या जिन चीज़ का रेट्स कम होता था वह पसंद आता था। तो बच्चों, मैंने ये पूरा चैप्टर जो कि पोएट्स एंड पैनकेक्स है क्लास 12th का, ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। ओके, एक वीडियो नहीं है, 2 वीडियोज़ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स देख सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो has given you absolute clarity, as you can also find that I have given every paragraph's explanation to make this chapter clear and interesting. मैंने हर पैराग्राफ का एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया है, जिससे कि आपको पैराग समझने में, जिनको इंग्लिश में बातें समझ आती हैं उनको इंग्लिश में, और जिनको हिंदी में आती हैं वो हिंदी में आराम से समझ पाएँ, राइट? सो यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमंग ग्रेड 12 स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को ज़रूर CBSE ग्रेड 12 स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए। बहुत यूजफुल वीडियो है, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इफ़ यू विल शेयर दिस वीडियो, है ना, इफ़ यू विल फॉलो दिस वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, माई चैनल, दैट इज़ इम्पैक्टफुल लर्निंग विद नुपुर। थैंक यू सो मच।